Good morning. I am Anil Agrawal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So this series of daily news is helping you. I am very happy that this type of videos are helping you to save lot of time on reading newspaper, and you are able to utilize that time on other subjects. So today major news is payment through digital modes are expected to rise multiple fold in next 5 years. Second news is NPCI launched UPI Auto Pay. This is very important from examination point of view. NPCI launched UPI Auto Pay can now enable recurring e-mandate using any UPI application for recurring payments like mobile bill, electricity bill, EMI payments up to rupees 2000. So three things is to be remembered in this news. First is name UPI Auto Pay. Second, recurring. Recurring means that happens after a fixed interval every month, every 2 months. So automatically account will be debited. And third is the amount, that is 2000 rupees is the upper ceiling. So you can expect question in either of these three. Next is SBI chairman says mobile banking is now most preferred channel used by customers. And the chairman shared the total number of transactions. Now he says only 9% customers comes to branch. Only 9%. 30% people they transact through ATMs. 55 through mobile, and rest may be through internet banking or so. So mobile banking is now taking over all mode of transactions. That is, you can see where banking is moving. The another news is Bank of Baroda Insta Click saving account launched. Now this account can be opened online without coming to the branch and through eKYC. So this is a very important thing now. So one of the big public sector bank is entering into instant opening of accounts. So all these things are important from examination point of view. They may ask the name of new product of Bank of Baroda in saving account. What is the ratio between the transaction carried out by people in mobile banking, rough estimate. So all these things are important. So if you are preparing for general awareness, first is daily news in banking, economic and finance, you should be up to date. So I have provided you two playlists now. One playlist have all the videos on daily news of July 2020. Another playlist is July 2020 plus previous news, exhaustive playlist. You can watch 5 to 10 videos daily to cover the previous news. Then how to understand these terminologies? When we are reading newspaper, we are not clear what do we mean by all these things. So I have a playlist of 195 videos where all the concepts, all the basic things, all advanced things are covered. Watch 5 to 10 videos daily. Then you have to cover current affairs. If you read newspaper, it takes a lot of time. So all the news is now placed in say PDF form, is available on a application, you can use it. So that current affairs PDF link also I have given you in description. You can subscribe, you will get monthly PDF, and out of that PDF you read the news, it will save a lot of time. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. मुझे बहुत खुशी है जो हमने ये सीरीज शुरू की है डेली न्यूज़ की, ये आपका बहुत टाइम सेव कर रही है. चुनी हुई खबरें आप कुछ ही मिनटों में देख रहे हैं और आप जो टाइम बचा रहे हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स में लगा पा रहे हैं. तो जो आज की खबर है, पहली खबर ये है कि पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड्स 5 गुना होने की संभावना है, कई गुना होने की संभावना है जो आज है अगले 5 साल में. मीन्स लोगों के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शंस पॉपुलर होती चली जा रही है. दूसरी न्यूज़ है एनपीसीआई ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया. यहाँ से काफ़ी प्रश्न आ सकते हैं.
यूपीआई ऑटो पे, नाम पूछ सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर है वो अपने किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे जो उसकी रिकरिंग पेमेंट्स हैं उसको इनेबल कर सकते हैं। रिकरिंग मीन्स जो हर महीने आ रही है, हर 2 महीने में आ रही है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद आ रही है। जैसे बिजली का बिल है, मोबाइल का बिल है, कोई ईएमआई है, कुछ और ट्रांजैक्शन है, तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऑटो पे हो गया। और इसके अंदर जो मैक्सिमम लिमिट अभी रखी है वो 2000 रुपये की है। अगर 2000 से अधिक की ट्रांजैक्शन आती है तो उसको ऑथेंटिकेट करना होगा कस्टमर को। तो बहुत ही अच्छी चीज़ ये दे दी है। इससे बहुत टाइम लोगों का बच जाएगा और डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपकी ऑटो मोड से चली जा रही है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो स्टेट बैंक के चेयरमैन ने कहा। स्टेट बैंक के चेयरमैन ने यह बताया कि मोबाइल बैंकिंग धीरे 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 सबसे बड़ा प्रेफर्ड टूल बनता जा रहा है कस्टमर के लिए बैंकिंग करने की। तो उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि क्या रेशो चल रही है आज की डेट में और पहले क्या थी, ये सबको पता है। तो आज की डेट में वो कहते हैं कि हर 100 कस्टमर में सिर्फ 9 कस्टमर ही ब्रांच में जाके बैंकिंग कर रहा है। एक तो वैसे ही कोविड चल रहा है, लोग कम जाना चाहते हैं, और दूसरा जैसे जैसे टेस्ट बढ़ता जा रहा है लोगों का मोबाइल की तरफ, वो ये घटता जा रहा है। तो सिर्फ 9% ट्रांजैक्शन अब बैंक कर रही है ब्रांच के थ्रू। 30% के करीब लोग अभी भी एटीएम पे जा रहे हैं। ये भी पहले से घटा है, ये भी पहले से घट गया है। बड़ा कहां पे है? मोबाइल पे 55%। 100 में से 55 लोग, आधे से ज्यादा लोग मोबाइल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और जो रेस्ट बचे हुए हैं वो इंटरनेट बैंकिंग या अदर मोड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मीन्स इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस भी बहुत कम हो गई, मोबाइल बैंकिंग की तरफ लोग चले गए हैं, वहां पे आसानी से हो रहा है तो उसी को वो यूज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। ये इंसाइट बता रहा है कि बैंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज है बैंक ऑफ बड़ौदा से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो कई बार ये नाम पूछ लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया सेविंग का, क्या नाम है इसका। अब इसमें क्या है कि बिना ब्रांच में जाए कस्टमर जो है eKYC से अपना अकाउंट खोल पाएगा। बहुत ही मेजर अचीवमेंट है ये। तो इससे बैंक ऑफ बड़ौदा का बिजनेस भी बढ़ेगा और एक कंपटीशन भी होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को, क्योंकि लोगों का भरोसा ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में है। अगर सेम सुविधा पब्लिक सेक्टर देती है तो कस्टमर प्रेफर करता है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरफ से ये। तो अब हमने आपको डेली एक वीडियो दे दिया। अब जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे उनकी सुविधा के लिए मैंने 2 प्लेलिस्ट दे दी आपको। जुलाई 2020 की एक प्लेलिस्ट है जिसमें जुलाई वाली सारी वीडियोस डाल दी हैं। 5 से 10 वीडियो रोज देख लो, पिछली आपकी वीडियो 3-4 दिन में कवर हो जाएंगी। फिर उससे पहले की डेटों की प्लस जुलाई की वो एक अलग प्लेलिस्ट बना दी, जिसको कंप्रीहेंसिवली 3-4 महीने की देखनी है वो वहां से देखेगा। तो हर मंथ की एक बना देंगे प्लेलिस्ट और एक एग्जॉस्टिव रहेगी। 5 से 10 पुरानी वीडियोस देख लीजिए आप, आपका काम बन गया। दूसरी चीज ये, कई लोगों को शब्द समझ नहीं आते, कईयों की बैंकिंग की नॉलेज लिमिटेड है, तो उनके लिए 195 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीजें ये। तो इसको आप देख लीजिए, 5-10 वीडियोस, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, काफी टाइम लग जाता है उसके अंदर, वहां से न्यूज आपकी एक पीडीएफ के अंदर है, करंट अफेयर के अंदर। ये पेड सब्सक्रिप्शन है, ये पीडीएफ का लिंक मैंने आपको दे दिया, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मंथली पीडीएफ से कुछ पेजेस रोज पढ़ते जाइए। बहुत टाइम आपका बच गया और सारी न्यूज भी कवर हो गई, करंट अफेयर कवर हो गया। तो इन 3 सोर्सेज से अगर आप तैयारी करते हैं तो जनरल अवेयरनेस पेपर की मोर और लेस आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। अब अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ आप कहना चाहते हो, तो आप कमेंट कॉलम में लिख सकते हो, क्योंकि ये जो हमारा एंडेवर है ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने शुरू किया। अब इसमें भी यदि आप कुछ चाहते हो, कुछ और इम्प्रूवमेंट हो जाए और चीज़ें भी इसमें कवर कर लें, तो जैसे आप उसके अंदर सजेस्ट करेंगे उसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ, उसको हम और अधिक वैल्यू एडिशन कर सकते हैं।
आपने देखा ही है 2900 से अधिक वीडियोस आज हमारे चैनल पे हैं। जितनी अधिक वीडियोस आप देखेंगे उतनी नॉलेज आपकी बढ़ेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।